ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ السلام علیکم۔ آج سیر کریں گے سعودی عرب کی، کیونکہ ہمارے پاکستان کے بعد سب سے زیادہ ویورز سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ یورپ کی کافی شاپ میں بیٹھا عبداللہ کافی پی رہا تھا۔ عبداللہ کی برابر والی ٹیبل پر ایک آدمی اسے دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب عبداللہ کے لیے حیران کن تھا۔ عبداللہ نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے۔ لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ عبداللہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر آپ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنے کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پر رکھا، گڈ بائے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن عبداللہ اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہے۔ عبداللہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، کیونکہ عبداللہ اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے عبداللہ کو 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ عبداللہ جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی، اس دن ہم میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حجاز مقدس اس روئے زمین پر مقدس ترین سرزمین ہے۔ مکہ میں مسجد حرام اور مدینہ میں مسجد نبوی ہے۔ عبادت کا رخ اگر مکہ ہے تو محبت کا رخ مدینہ۔ حرمین سے ہمارا رشتہ جسم کا بھی ہے اور روح کا بھی۔ ویڈیو مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مشرق میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین ہے۔ مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہیں، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے۔ یہاں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی سردار محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ اگلے 150 سال میں آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع و غروب ہوتا رہا، جس کے دوران جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبد العزیز سعود کے ہاتھوں میں عمل میں ہے۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے پہلے بادشاہ عبد العزیز ابن سعود کی اولاد کی حکمرانی ہے۔ قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب میں آج بھی کئی اسلامی سزائیں نافذ ہیں۔ ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے، نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مساجد اور قرآن اور اسلامک سینٹر کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتی ہے۔ قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے، جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہے، جن کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ سعودی بادشاہ خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن مسجد نبوی اور حرم شریف میں سننے کو ملتا ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنائی جا رہی ہے، جس کی ہائٹ 3280 فیٹ ہوگی، یعنی 1 کلومیٹر۔ موجودہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ کی ہائٹ 600 فیٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں مواد ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں GMC، لیموزین، ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ سعودیہ میں گاڑیاں بہت سستی ہیں۔ ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے، جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکی لڑکا الگ گھر میں رہتے ہیں۔ 2-3 شادیاں کرنا عام رواج ہے۔ ایک سٹوری پر ایک بیوی دوسری
दूसरी और तीसरी स्टोरी पर तीसरी बीवी है। मेरे एक दोस्त के मेहमान अरबी उनके घर में आए। उनकी वाइफ अरबन ने कहा, जिस पाकिस्तानी से पूछो 1 बच्चा 2 बच्चा, हमारे सऊदीया में 10 बच्चा 11 बच्चा। घर की किसी तकरीब में एक ऊँट का पता भी नहीं चलता किधर गया। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को खुशामदीद तो कहा जाता है, लेकिन गैर मुल्की ख्यालात को नहीं। इस पूरे इलाके में हकीकी तब्दीलियां सिर्फ पिछले 50 साल में आई हैं, जब तेल से होने वाली आमदनी की बदौलत यहाँ के लोगों की किस्मत ने पलटा खाया। अवाम शहरी बूदोबाश को अपनाने लगे। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दोस्त मुल्क है। हर मुश्किल की घड़ी में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की, सैलाब हो या ज़ल्ज़ला, हर दम पाकिस्तान के बड़े भाई की तरह साथ खड़ा हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं। पाकिस्तानी हर साल तकरीबन 1200 अरब रुपए सऊदी अरब से भेजते हैं, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में भेजी जाने वाली रकम से ज्यादा है, जिससे पाकिस्तान के 28 लाख खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। और पाकिस्तान का शायद ही कोई खानदान हो जिसका कोई अजीज सऊदी अरब में ना हो या हज या उम्रा के लिए ना गया हो। आप सऊदी अरब को पाकिस्तान का दूसरा घर कह सकते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में 1,08,50,192 गैर मुल्की काम कर रहे हैं, जबकि नौकरियों पर मौजूद सऊदी बाशिंदों की तादाद सिर्फ 30,38,945 है, जिनमें से 30 लाख भारतीय, 28 लाख पाकिस्तानी, 22 लाख मिस्री, 14 लाख यमनी और 12 लाख बंगाली शामिल है। बाकी दूसरे ममालिक के बाशिंदे हैं। सऊदी अरब के बानी अब्दुल बिन सऊद की 22 बीवियां थी। इनमें से 17 बीवियों के 45 बेटे पैदा हुए और शाही खानदान के शहजादों की तादाद 7,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। सऊदी अरब में कुर्बानी के 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम, लोग मंडी जाते हैं, कुर्बानी का जानवर पसंद करते हैं, उमरा छतरे खरीदते हैं, ये महंगे होते हैं। मिडिल क्लास सूडान के बकरे खरीदती है और गुरबा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बकरे खरीदते हैं या ऊंट में हिस्सा डालते हैं। हुकूमत ने मुल्क के तमाम शहरों, कस्बों, देहात में जदीद स्लाटर हाउस बना रखे हैं। पूरे सऊदी अरब में स्लाटर हाउसेज के नर्क तय हैं। ये 20 रियाल लेते हैं और आधे घंटे में बकरे या ऊंट की साफ सुथरी बोटियां गाहक के हवाले कर देते हैं। स्लाटर हाउस का दर्जा हरारत और सफाई मिसाली होती है। आप यकीनन जानते हैं जानवरों का गोश्त 4 सेंटीग्रेड से ऊपर या नीचे दोनों हालतों में खराब हो जाता है। सऊदी अरब के स्लाटर हाउस का दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड होता है, चुनाचा गोश्त सेहतमंद और फ्रेश रहता है। अमला गाहकों को गोश्त बकायदा प्लास्टिक के थैलों में पैक करके देता है। जानवरों की लाशें और चर्बी स्लाटर हाउस में तल्फ कर दिया जाता है। जानवरों की बाकियात माशरे को खराब करती हैं, बीमार करती हैं और ना ही इनसे जेली घी और कुकिंग ऑयल बनता है। दूसरा सिस्टम, सऊदी अरब ने इस्लामी बैंक से मिलकर कुर्बानी की ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है। ऑनलाइन सर्विस में दुम्बे और बकरे की कीमत तय है। आप 120 अमेरिकी डॉलर, 92 यूरोस, 450 रियाल या फिर तकरीबन 14,000 पाकिस्तानी रुपयों में जानवर खरीद सकते हैं। ये जानवर मुख्तलिफ स्लाटर हाउसेज में मौजूद होते हैं। जो ही सार्फ की रकम ट्रांसफर होती है, स्लाटर हाउसेज वो जानवर ज़िबा कर देते हैं और सार्फ को कुर्बानी की ऑनलाइन इतला कर दी जाती है। जानवर की लाशें स्लाटर हाउस में तल्फ हो जाती हैं और गोश्त जहाज के जरिए मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के गुरबा को भेज दिया जाता है। ये सर्विस 2009 में शुरू हुई। ये अब तक 1,96,50,000 जानवर कुर्बान कर चुकी है। पिछले साल भी सर्विस के जरिए 7.5 लाख जानवरों की कुर्बानी हुई। मैं यहाँ दुबई की मिसाल भी दूंगा। दुबई हुकूमत ने अल मवेशी के नाम से एक मोबाइल ऐप बना रखी है। दुबई के हजारों लोग इस ऐप पर जानवर पसंद करते हैं, रकम अदा करते हैं, वो जानवर हुकूमत के स्लाटर हाउस में ज़ब्ह कर दिया जाता है और बात खत्म। दुबई हुकूमत आवाम को घरों में कुर्बानी की इजाजत नहीं देती। दुबई का कोई कसाब अगर किसी घर में जानवर ज़िबा करता पकड़ा जाए तो उसे 2,000 दिरहम जुर्माना भी होता है और इसका लाइसेंस भी मनसूख हो जाता है। सऊदी अरब को इंतजामी लिहाज से 13 सूबों में तकसीम किया गया है, जिनको अरबी जुबान में मनातिक कहते हैं। सऊदी अरब के वली अहद ने 500 अरब डॉलर की लागत से न्योम नामी मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें नया शहर और कारोबारी जोन तमीर किया जाएगा, जो मुल्क के शिमाल मगरबी इलाके में 26,500 मरबा किलोमीटर पर मुहित होगा। ये बहरे अहमर के साहिल और अकाबा खलीज पर एक पुरकशिश मंजिल होगा, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ेगा। बुरीदा अल कसीम दुनिया भर में खजूरों की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज है और बुरीदा में खजूरों की सालाना मंडी लगती है, जहाँ पूरी दुनिया से खासकर अरब और खलीज ममालिक अपने साल भर की जरूरियात के लिए खजूरें खरीदते हैं। आपको कोई सऊदी नहीं मिलेगा जिसकी जेब में मसवाक, गाड़ी में कुरान और मुसल्ला और घर में खजूर और जैतून न मिले। सऊदीया की मशहूर फास्ट फूड चेन अलबैक है, जिसका हर कोई दीवाना है, जहां जब देखो लाइनों में लगकर खाना मिलता है। इसकी कामयाबी का राज एक आलम ने फाश किया। उसका मालिक हर डील में से 1 रियाल सदका देता था। जब वो फोत होने लगा तो अपने बेटों को सदके की वसीयत की। बेटों ने बाप से बढ़कर हर डील में से 2 रियाल सदका देना शुरू कर दिया, जिससे लाखों गुरबा और मसाकीन का चूल्हा जलता है। अल्लाह ने इन्हें रंग लगा दिए हैं। अब अलबेक का कारोबार अरब की दूसरी रियासतों तक वसी हो चुका है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जमजम पिया जाता है और खजूर खाई जाती है और सऊदीया में गहवा पिया जाता है और खुबूस खाया जाता है। पाकिस्तानियों के लिए दोनों चीजें मुश्किल हैं। उन्हें फिर अपने वतन की बड़ी याद आती है, माँ के पराठे, बाप की शफकत, बहन का लाड और भाइयों का प्यार, और अपनी बीवी बच्चों को याद करके रोते हैं। सऊदी अरब में कजन मैरिज से पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। टेस्ट पॉजिटिव आने की सूरत में शादी नहीं करने दी जाती। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। मक्का और मदीना में मकामी आबादी कम है और उम्रा हज के लिए आने वाले हाजियों की तादाद ज्यादा है। आपको इन मकामात मुकद्दसा में दुनिया की हर नेमत मिलेगी। मक्का और मदीना के दस्तरखान दुनिया के सबसे बड़े दस्तरखान है। जद्दा दूसरा सबसे बड़ा शहर हज उम्रा के लिए दुनिया भर के ज़ायरीन की पहली क़यामगाह और बहीरा कुल्ज़म की बंदरगाह है। तमाम मशरक़ी सूबे का दारुल हुकूमत है और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ताइफ मक्का के करीब पहाड़ी इलाका, जहाँ के अनार दुनिया भर में सबसे ज्यादा मीठे हैं। तबूक उर्दन की सरहद के करीब वाक़ शिमाल मगरबी शहर है। हफूफ कदीम साहिली नखलिस्तानी और तेल के अजीम ज़खायर का शहर है। खुमेस मशीद मगरबी अरब में अस्करी और तरबीती मरकज है। तौमतुल जंदल, जहाँ मेरा बड्डी उमर गुजर होता है। सऊदी अरब का मौसम मजमूई तौर पर शदीद गर्म और खुशक है। ये दुनिया के उन चंद इलाकों में से एक है जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे जाना मामूल की बात है। मौसमी सरमा में बुलंद पहाड़ी इलाकों में कभी कभार बर्फ पड़ जाती है, तहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर बर्फ नहीं होती। अबहा सबसे ठंडा इलाका है। मौसम सरमा का औसत दर्जा हरारत 8 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 27 से 43
सेंटीग्रेड तक होता है। वस्त सहराई इलाकों में गर्मियों में भी रात के वक्त मौसम सर्द होता है। सऊदी अरब में बारिशें बहुत कम होती हैं, ताहम कभी कभार मूसलाधार बारिश से वादियों में जबरदस्त सैलाब आ जाते हैं। दारुल हुकूमत रियाज में सालाना बारिश 100 मिलीमीटर यानी 4 इंच है, जो जनवरी से मई के दरमियान होती है। जद्दा में नवंबर और जनवरी के दरमियान 54 मिलीमीटर यानी 2.1 इंच बारिश होती है। सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 35 लाख के करीब है। सऊदी अरब आबादी के लिहाज से 41वें नंबर पर आता है। तकरीबन 80% सऊदी बशिंदे नस्ली तौर पर अरब हैं। मजीद बरा चंद जनूबी और मशरकी अफ्रीकी नस्ल से भी तल्लुक रखते हैं। सऊदी अरब का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। सऊदी अरब गरमाई ओलंपिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और दीगर खेलों में आलमी सतह के टूर्नामेंट्स में शिरकत करता है। कौमी फुटबॉल मुसलसल 4 मरतबा वर्ल्ड कप और 6 मरतबा एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने के बायस आलमी सतह पर जानी जाती है। सऊदी अरब 3 मरतबा एशियन चैंपियन रह चुका है और 2 मरतबा फाइनल में शिकस्त खा गया था। सऊदी अरब के चंद मारूफ फुटबॉल खिलाड़ियों में माजिद अब्दुल्ला, सामी अल जाबर और यासर कहतानी शामिल हैं। सऊदी सकाफत की बुनियाद मजहब इस्लाम है। इस्लाम में शराबनोशी और सूअर के गोश्त के इस्तेमाल की सख्ती से ममानियत है। इस पर सऊदी अरब में सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। सऊदी रोटी खुबज का तकरीबन तमाम खानों में इस्तेमाल किया जाता है। भुनी हुई भेड़, मुर्गी, फलाफल, शोरमा और फूल भी दीगर मशहूर खानों में शामिल है। रवायती कहवा खाने हर जगह मौजूद हैं, ताहम अब इनकी जगह बड़े कैफे ले रहे हैं। बगैर दूध की सिया अरबी चाय का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। सऊदी अरब का लिबास माजी और इस्लाम से तल्लुक का आकाश है। रवायती तौर पर मर्द टखने तक की लंबाई की ऊनी या सूती कमीज पहनते हैं, जो सोब कहलाती है, जिसके साथ सर पर शमाग या गोतरा का इस्तेमाल किया जाता है। औरतों का लिबास कबायली मोतियों, सिकों, धाती धागों और दीगर अशिया से मुज़य्यन होता है। सऊदी ख़वातीन घर से बाहर अबाया और नकाब का इस्तेमाल करती हैं। सऊदी अरब की मारूफ तरीन लोक रस्म कौमी रक्स अर्दा है। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रक्स कदीम बदवी रवायात का हिस्सा है। हिजाज की अल सहबा लोक मूसीकी की जड़ें कुरून वस्ता के अरब अंदलस से जा मिलती हैं। सऊदी अरब में 2 पहाड़ काट कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन अजायब घर है। ज़ुहूर इस्लाम से कबल आबाद इस वादी के बासी पहाड़ियों को तराश कर मकबरे और घर बनाते थे और फिर इनकी सजावट के लिए नक्शो नगार और कदीम तरीन जुबान में खत्ताती। किलोमीटर के फासले पर वाक़या मदाइन साले नामी पहली सदी के इन आसार कदीमा में 131 पत्थरों और चट्टानों को तराश कर बनाए गए घर मौजूद हैं। इस शहर खामोशा को देखकर माहिरीन ने अंदाजा लगाया है यहाँ की आबादी उस वक्त 4-5 लाख के करीब हो। यूनेस्को ने इस मकाम को सऊदी अरब का आलमी विरसा करार दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन म्यूजियम भी है। इंसान अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भी वालिदैन की खुशनुदी, इज्जत और एहतराम के लिए वक्फ कर दे तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो इन अजीम हस्तियों से भी बदसलूकी कर बैठते हैं। सऊदी सुप्रीम जस्टिस काउंसिल ने अदालतों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक वालिदैन पर तशद्दुद या उनकी हतक के मुर्तकिब होने वालों को एक मुकर्ररा अरसे तक कब्रें खोदने और मुर्दे नहलाने की सजा दी जाएगी। सऊदी माशरा सख्ती से अपनी रवायात का पाबंद रहने वाला मुल्क है। ये बात भी यहाँ है, सऊदी आला तरीन जमालियाती ज़ौक़ रखते हैं और इस मामले में उनकी जिद्दत पसंदी किसी से ढकी छुपी नहीं। यहाँ वो गैर मुल्की इंतहाई एहतराम की नजर से देखे जाते हैं, जो खुद सऊदियों की रवायत पसंदी पर कोई ज़र्ब न लगाए। ताहम जिद्दत और रवायत की कशमकश रियाज शहर में ज्यादा वाज़ेह नजर आती है, जो मुमलिकत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। देखा जाए तो ये शहर न सिर्फ शाही खानदान बल्कि तमाम तर सऊदी रवायात का मजबूत तरीन किला है। सऊदी अरब के महकमा शुमारियात ने दिलचस्प आदादो शुमार जारी किए। इनके मुताबिक हर 100 शादीशुदा खवातीन में से 46% की शादी 20 साल से कम उम्र में हुई थी। सऊदी अरब में मर्दों की शादी करने की औसत उम्र 25 साल और 3 माह है। सऊदी अरब में गैर शादीशुदा खवातीन की शरह का तनासब 10.3% है। इसका ये मतलब है 15 या इससे ज्यादा उम्र की हर 10 लड़कियों या औरतों में से एक ऐसी होती है जो 32 साल की उम्र को पहुंच जाती है मगर उसकी शादी नहीं होती और वो कंवारी ही रह जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार करें। मुझे दें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान।